ہمیں دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا پی ٹی آئی کو لا سکتا ہوں، ایک اور کانفرنس ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صوبوں کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور وفاق میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ مہاجرین کو واپس نہ بھیجنے کے علی امین کے بیان سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ ٹرین حملے کے وقت پی ٹی آئی کی ہمدردیاں کسی اور طرف تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے رابطے ہر سطح پر رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی طرح کی ڈیل کے قائل نہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدوجہد کے ذریعے ہی بانی کی رہائی ممکن ہے۔ پارٹی ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے کو شو کاز نوٹس ہر صورت ملے گا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ملک میں بجلی سستی اور مہنگی ہو جائے گی اور مہنگائی کی شرح بھی مزید بڑھ جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی آتا ہے ملک میں ترقی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا جاتا تھا پاکستان شری لنکا بن جائے گا، ہر وقت خیال آتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمارا ہاتھ پکڑے گا یا نہیں۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے مل کر ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کی۔ پی ٹی آئی والوں کا لیڈر بین الاقوامی چور ہے، ہم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی سے اقتدار حاصل کیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی زد میں ہیں، فوج قربانیاں دے کر ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں چل رہی۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کہتے ہیں بانی کو علی امین گنڈاپور پر بھروسہ ہے، انہوں نے ہی وزیر اعلیٰ بنایا۔ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو 1 منٹ میں وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیں، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈاپور، اسد قیصر اور عاطف خان سب پر اعتماد ہے۔ سیاسی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب تک نہیں ٹوٹا، مولانا فضل الرحمان کا انکشاف۔ تونسا شریف میں جلسے سے خطاب میں کہا پی ڈی ایم کا سربراہ اب تک میں ہی ہوں اور اپوزیشن میں ہوں، جبکہ باقی پارٹیز حکومت میں ہیں۔ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں سے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ ہماری تجویز تھی کہ آئین عدالت قائم ہو، جبکہ جو سیاسی کیسز کے فیصلے کر کے قوم کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پیدا کرے۔ ہمارے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو احتجاج سے رہا کرائیں گے، عنقریب بانی پی ٹی آئی سے احتجاج کی منظوری لیں گے۔ عاطف خان کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کے بیان کی تصدیق کرائے گی۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، تمام اراکین بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جو بانی کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پر میڈیا میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات میں ایسے بیانات سے بانی چیئرمین کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی میں لڑائی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نکلوا رہے ہیں۔ کے پی میں تحریک انصاف میں تقسیم پہلے سے موجود تھی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اسد قیصر، عاطف خان اور شہرام ترکئی کو بانی ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ بانی نے تینوں کو ٹکٹ نہ دینے کے فیصلے کی بیرسٹر گوہرا اور میرے سامنے تصدیق کی۔ علی امین گنڈاپور نے تینوں کے بارے میں ٹکٹ کے حوالے سے ٹھیک کہا، کچھ نہ ہوا تو 15 دن بعد تحریک انصاف میں مزید لوگ بولیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر کارروائی کریں تو پی ٹی آئی کی سابقہ کابینہ کے آدھے ارکان جیل میں ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا، ملک میں آئین کی بحالی کے لیے وکلاء کو متحرک ہونا پڑے گا۔ سینیٹر حامد خان کی اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا سڑکوں پر آنا صرف تحریک کا نام نہیں ہوتا، ہم نے آئین کی بحالی کے لیے 2 سال تحریک چلائی تھی، تب جا کر کامیابی ممکن ہوئی۔ ہمارا موقف آئین کی بحالی اور 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ کرنا تھا، جان بوجھ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز التوا میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ معاشی استحکام اس ملک میں پہلے بھی آ چکا ہے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یہاں پہلے بھی آ چکی ہے، اینڈ وائی ڈونٹ وی گو فرام ہیئر ویئر وی نیڈ ٹو گو، کہ یہ فنڈ کا آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ ایز وی ڈیلیور دس ایئرز ریونیو ٹارگیٹ ول بی اپ 32.5% ایئر آن ایئر۔
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वज़ीर आज़म और काबीना की सवाबदीद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे की बात अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुकूमत अफरात ज़र की शरह के मुताबिक ही चलेगी। अगर महंगाई सिंगल डिजिट पर है तो इसके मुताबिक ही फैसला होगा। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। रियल इस्टेट, ताजरों और ज़रूरी शोबे को टैक्स देना पड़ेगा। इन शोबों ने टैक्स ना दिया तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय करेंगे। टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। रवा माली साल माशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। गंदम और गन्ने की फसल की कीमत से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने अब किसी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना। इन्हें ख़ुद को बैन अल-अक़वामी तौर पर मुकाबले के काबिल बनाना है। क्रिप्टो में हम दुनिया में 7वें नंबर पर आ चुके हैं। हम फैटअप से बहुत मुश्किल से निकले, वापस इसकी पाबंदियों में नहीं जाना चाहते। हमें इस नई मईशत का हिस्सा बनना है। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। PTI की निजकारी का राउंड 2 रवा माह शुरू करेंगे। IMF टीम की मसरूफियात को मंजर-ए-आम पर ना लाने का फैसला। IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला। IMF टीम की मुलाकातों की इत्तलात मुतलका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएंगी। IMF का वफ्द 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वफ्द गुड गवर्नेंस और करप्शन के तखलीसी जायज़े बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। IMF वफ्द साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का जायज़ा भी लेगा। गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलोअप मुज़ाकरात होंगे। टीम आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात और इस पर कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात करेगी। टीम बजट को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान खेलों की अहमियत तस्लीम करते हुए आलमी बरादरी के साथ इजहार एकजहती करता है। खेलों के आलमी दिन बराए तरक्की और अमन के मौके पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खेल तरक्की और आलमी सतह पर मुल्क की शनाख्त उजागर करने का मौसर ज़रिया है। हमारी हुकूमत ने खेलों को अपने तरक्याती एजेंडे का मरकज़ी सतून करार दिया। इस बात पर यकीन रखते हैं कि बेहतर इंतज़ाम मजबूत खेलों की बुनियाद है। हुकूमत खेलों की कौमी फेडरेशंस में शफ़ाफियत के लिए इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। और ये देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा सदर ने नहरों की दस्तावेजी मंजूरी दी। सिंध में की जाने वाली सियासी तकलीफ दे है। बयानबाजी से नहरों का मसला हल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, इनसे कोई लड़ाई नहीं। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। अज़मा बुखारी साहबा, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं। अज़मा बुखारी को PPP से मसला है तो बैठकर हल करें, गलत बयानात ना दें। नहरों पर पंजाब हुकूमत वाज़े नहीं कर सकी, पानी कहाँ से आएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन के तहत ये सदर का मैंडेट नहीं कि वो सूबों की मंजूरी दें, और मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। आप सोचें, समझें, पढ़ लें, फिर बयान दें। अगर आपके घर में झगड़े हैं तो वो ही वहीं तक रखें। कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। नून लीग में जो कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन पढ़ते नहीं और बयान दे देते हैं। पंजाब हुकूमत का एजेंडा है कि हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म करें। हम किसी सूरत भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का डंपर से कुचले जाने वाले हर खानदान को प्लॉट देने का ऐलान। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। कहते हैं छोटे नारे लगाकर मुतासरीन को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। डंपर हादसा का जिम्मेदार ना कोई ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, ना ही मालिकान ने आकर किसी की कोई दाद रसी की है। मुतासरा खानदान किसके सामने फरियाद करे, कौन इंसाफ करेगा। सियासी जमातें और डंपर माफिया के सरगना मुझ पर तनकीद करते हैं। कराची लावारिस शहर नहीं है, हम इसके बेटे हैं। बच्चों के हाथों में क्लाशन कोफ नहीं, कलम देंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सवाती ने तहरीक इंसाफ के एहतसाब कमेटी को करप्शन इल्जामात पर जवाब जमा करा दिया है। करप्शन साबित होने पर पार्टी स्पीकर को ओहदा छोड़ने का कहेगी। ओहदा ना छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाह साबित होने पर स्पीकर और आजम सवाती में सुलह का टास्क वज़ीर आला को दे दिया गया है। स्पीकर बाबर सलीम के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगियों के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि करप्शन तहकीकात नैब का मैंडेट, पीटीआई कमेटी का नहीं। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं, इनकी अपनी वज़ारत आला खतरे में है। फसादी पार्टी मुल्क की तरक्की से खुश नहीं, मुखालिफिन अवामी रिलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत बेहतर हो गई। आज या कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी आयद। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। कहा आसिफ अली जरदारी के अहल खाना को रोज़ाना की बुनियाद पर सेहत से मुतालिक आगाही दे रहे हैं। सदर की तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद इस बात की तस्दीक हुई है सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं। इन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की टीम इनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोरोना में मुब्तला होने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत बेहतर होने से आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आ रही है। हुकूमत आवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोशां है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। जून से अब तक बिजली की कीमत में 18 रुपये कमी की गई है। हुकूमत ने साबित किया कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले कर सकती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ ने भी महंगाई की कमी में कलीदी किरदार अदा किया। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है। हर साल 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो निकाल कर फेंक दे। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग दुरुस्त नहीं। हम कराची का तबाह होने नहीं देंगे। मेडिकल हिस्ट्री चेक कराने के लिए नादरा शनाख्ती कार्ड से मदद लेने की तजवीज़। इंतजामी गफलत से 77,000 आज़मीन हज से महरूम। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो ना करने के मामले का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील। कमेटी 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी को वज़ारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज ना करने की तहकीकात करेगी। PIA ने 2025 के लिए क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 29 अप्रैल से 1 जून तक हज ऑपरेशन जारी रहेगा। 280 परवाज़ों के जरिए 56,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। रवां साल 1,79,000 पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनीज़ के जरिए होगी। हुकूमती वफ़द और सरदार अख्तर खान मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। बलूचिस्तान में एहतजाज पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि कुछ अनासर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाज़िद हैं। उम्मीद है कि मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो ज़िद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। KP हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वज़ीर आला अपने हल्के में नहीं जा सकते। बेअमनी की जिम्मेदार KP हुकूमत है। PTI ने कहा था कि तालिबान के दफातर खुलने चाहिए, इनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों। शर्जील इनाम मेमन ने बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर लिया। कहा कि आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दें।
मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आए, जो इक़्तिदार में हैं इनके पास मसाइल का कोई हल नहीं, तरक्की का सफ़र तजुर्बाकार क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाबी में खिताब, कहा कि 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आईं मगर मुल्क नहीं चल सका, अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार, मगर सवाबी आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अवाम को माशी दलदल से निकालने के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे में 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। बाजार बहावलपुर, अटक, मरी, नौशेरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में कायम किए जाएंगे। बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकिल के लिए 69 करोड़ रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा कि मंसूबे का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सत तबके को अशाए क़ुरनोश कम निर्खों पर फराहम करना है। नवाज शरीफ अपने विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की 5 बरस बाद बहाली का ऐलान। मार्च 2020 में कोरोना के बायस मुअत्तल किया गया था। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस एक मुनाफा बख्श और अवामी ट्रेन है। रवां माह के आखिर में बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेन कराची से पेशावर के दरमियान कई अहम शहरों को आपस में जोड़ती है।